Good morning, students. Myself Mahendra Kumar, Assistant Professor in Department of ASH, and our subject is Engineering Mathematics 2nd. Today we are going to discuss the topic solution of special type of partial differential equation. To discuss this topic, first we seen some definitions regarding this topic. First one is the complete integral. If from the partial differential equation f of x y z p comma q equal 0, यहाँ f of x y z p comma q equal 0, that means the equation is of the first order because p represents the del z upon del x and q represents the del z upon del y, or we can say del f by del x del q upon del y. We find a relation f of x y z a comma b equal 0 which contain as many arbitrary constants as there are independent variable. Then the relation f of x y z a comma b equal 0 is known as the complete integral of the given equation. Second, we discuss the particular integral. Particular integral is nothing but the solution. If we get the solution particular values of a and b of the complete integral, then the solution so obtained is known as particular integral. Third one is the singular integral. If f of x y z a comma b is the complete integral, then singular integral is obtained by eliminating a and b from the equations del f upon del a equal 0, del f upon del b equal 0 and f of x y z a comma b equal 0. Fourth one is the general integral. If we have seen that if two functions u and v of x y z are connected by an arbitrary function phi of u comma v equal 0. देखो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी लैग्रेंज मेथड में, जहाँ पर हमने कहा था कि u एंड v अगर अपने पास फंक्शन है ऑफ एक्स वाई जेड and these are connected by a relation phi of u comma v equal 0, then by eliminating phi, that is the arbitrary constant, we get a partial differential equation of the form p plus q is equal r. The solution of the equation is phi of u comma v equal 0 is called the general integral of the partial differential equation. Now we discuss the given topic special type of partial differential equation. In this section we shall discuss method for solving some important type of linear and non-linear differential equation of first order. To discuss this, first today we discuss type 1. Type 1 is the equation of the form f of p comma q equal 0, that means the equation containing only terms of p and q, that means del f upon del x and del f upon del y. And the method of solution is the given equation is f of p comma q equal 0, then the solution of equation first is of the form z is equal ax plus by plus c, where a, b and c are arbitrary constants and a comma b are connected by the relation f of a comma b equal 0. If equation 2 satisfy equation first, then it will be the complete integral of the equation first. Here equation 2 is the z is equal ax plus by plus c. If we put this equation in equation first and if it is satisfied the equation first, then the equation 2 will be the complete integral of the equation first. To show this, we differentiate equation 2 with respect to x and y. Yes, यहाँ देखो हम इस इक्वेशन z को अगर डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल ए एक्स, तो x का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा a प्लस बी वाई प्लस सी. तो बी वाई प्लस सी में कहीं पर भी अपने को x नज़र नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये पूरा क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 होता है. इसलिए अपने को क्या मिला डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल क्या मिला a, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं p से, तो p इज इक्वल कितना हो गया a हो गया. सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी b आएगी, तो वो q इज इक्वल कितना हो गया b हो गया. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 3.
देखो इक्वेशन 3 आपको दिख रही है ऊपर, एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल 0। यहाँ पर ए और बी की जगह अगर अपन वैल्यू पुट कर दें तो ए की वैल्यू पी है, बी की जगह क्या है क्यू, तो वी गेट एफ ऑफ पी कोमा क्यू इक्वल 0 विच इज द सेम एज इक्वेशन फर्स्ट। यू कैन सी द इक्वेशन फर्स्ट हियर, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एफ ऑफ पी क्यू इक्वल 0। तो ये हम वापस इक्वेशन गेट कर सकते हैं, which is the same as the equation first. This shows the equation to satisfy equation first and hence it is the complete integral of equation first. To see this we get some examples. First example है कि solve p square minus q square is equal 1। स्टूडेंट्स ये आपकी इक्वेशन टाइप 1 हो गई, क्यों? ये एफ ऑफ पी कोमा क्यू इक्वल क्या आ रहा है 0। तो the given equation is of the form f of p comma q equal 0, hence its complete integral is given by z is equal ax plus by plus c, where f of a comma b equal 0, or we can say a square minus b square is equal 1, then b is equal root of a square minus 1। देखो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि तो कंप्लीट इंटीग्रल आपका वो क्या है, z इजिकल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, वेयर एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल 0। ये रिलेशन हमने अभी देखा है, ये रहा एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल 0, जहाँ पर ए इजिकल कितना पी आया और बी इजिकल कितना आ रहा है क्यों आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो ए है सॉरी पी जहाँ है उसको तो ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्यों है वहाँ पर बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट देखो, यहाँ पर इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या आ जाएगा, पी की जगह ए रखोगे और क्यू की जगह बी, तो आपको नजर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 1। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ बी, बी इज इक्वल कितना आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर द कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन बाई, कंप्लीट इंटीग्रल आपको दिख रहा है जेड इज इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पर बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे रूट ए स्क्वायर माइनस 1। तो अपने पास जो न्यू इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, जेड इज इक्वल ए एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस सी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन भी करें जेड का, तो जो रिजल्टेंट आए वो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है कि ए इज इक्वल क्या ले लिया हमने, सेक एल्फा ले लिया। अगर हम ए की जगह सेक एल्फा लिखेंगे तो क्या दिखेगा, देखो आपको सेक एल्फा एक्स प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। तो ए की जगह सेक स्क्वायर लिखोगे तो सेक स्क्वायर एल्फा माइनस 1 कितना होता है 10 स्क्वायर एल्फा, और 10 स्क्वायर एल्फा का अगर रूट होगा तो वो क्या आएगा 10 एल्फा वाई प्लस सी। अब ये अपने पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगर हमें इसे चेक करना है तो जेड इज इक्वल जो ये पार्ट है, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जैसा हमने अभी यहाँ करके चेक किया था, ये देखो टू शो दैट द डिफरेंशिएट इक्वेशन we differentiate equation 2 with respect to x and y। जैसे हमने यहाँ चेक किया है वैसे हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में भी। जैसे z इजिकल अपने पास क्या आ रहा है, आंसर आ गया सेक एल्फा एक्स प्लस 10 एल्फा वाई प्लस सी। नाउ वी वांट टू चेक दैट दिस इक्वेशन या दिस कंप्लीट इंटीग्रल सेटिस्फाई द इक्वेशन फर्स्ट। टू शो दिस फर्स्ट वी डिफरेंशिएट इक्वेशन z विथ रिस्पेक्ट टू x, देन डेल z बाई डेल एक्स इजिकल कितना आएगा, देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर सेक एल्फा एक्स में ही एक्स दिख रहा है, बाकी आगे कहीं पर भी एक्स नहीं दिख रहा है। तो यहाँ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सेक एल्फा। तो डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू आ रही है सेक एल्फा विच इज रिप्रेजेंटेड, डेल जेड बाई डेल एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं पी से, तो सेक एल्फा किसकी वैल्यू हो गई पी की। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्या रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और ये वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जेड को, तो यहाँ वाई ए की जगह दिख रहा है आपको, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो क्या बचेगा 10 एल्फा। तो यहाँ पर अपने पास पी की वैल्यू सेक एल्फा आ रही है, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है 10 एल्फा आ रही है। अगर ये वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर एल्फा माइनस 10 स्क्वायर एल्फा, और सेक स्क्वायर एल्फा माइनस 10 स्क्वायर एल्फा कितना होता है हमेशा 1 होता है, ये आपका फॉर्मूला है। तो सेक स्क्वायर एल्फा माइनस 10 स्क्वायर एल्फा की वैल्यू क्या आ रही है 1, और वो किसको सेटिस्फाई करिए आगे RHS को सेटिस्फाई करिए, RHS में कितना आ रहा है 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स जो जेड इज इक्वल सेक एल्फा एक्स प्लस 10 एल्फा वाई प्लस सी है, वो क्या है आपका गिवन इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल है। ठीक है,
एक एग्जांपल और देखते हैं। उसको देखने के लिए देखो हमने थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि इक्वेशन रिड्यूस टू टाइप 1। यहाँ पर तो देखो अपने को एग्जैक्टली क्या दिख रही है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये आपको टाइप 1 की दिख रही है। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो इक्वेशन होती है आपको एग्जैक्ट टाइप 1 में नहीं होती है, वो रिड्यूसिबल टू टाइप 1 में होती है, यानी उसको हम स्टैंडर्ड टाइप 1 में रिड्यूस कर सकते हैं। तो सम इक्वेशन आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड 1 बट दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू दिस फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड टाइप 1 बाई प्रॉपर सब्सटीट्यूशन। देखो प्रॉपर सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि ये चीज़ अपने खुद के डिपेंड करती है कि अपन किस तरीके से इसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं इसका। तो सोल्व एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल जेड स्क्वायर दिख रहा है। तो सबसे पहला काम तो अपना क्या होता है, देखो जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको कांस्टेंट बनाने का काम करते हैं हम इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखो पी और क्यू दिख रहा है आपको। पी हमें पता है कि डेल जेड बाई डेल एक्स होता है, क्यू हमेशा डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दी, इज इक्वल क्या आ गया, जेड स्क्वायर आ गया। उसके बाद में क्या हम जेड स्क्वायर का डिवाइड कर सकते हैं आर एल एच एस और आर एच एस दोनों में। तो हम जेड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बनता, लेकिन स्क्वायर को हमने टोटल को बाहर ले लिया, इसलिए हमने क्या लिख दिया एक्स अपॉन जेड डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, और इजिकल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया, देखो एक कैपिटल एक्स इजिकल तो क्या मान लिया लॉग एक्स, कैपिटल वाई इजिकल क्या मान लिया लॉग वाई, और कैपिटल जेड इजिकल कितना मान लिया लॉग ऑफ जेड। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इसे तो देखो डी एक्स इजिकल कितना आएगा, लॉग एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स और एक्स का डी एक्स। सिमिलरली वाई का करेंगे तो डी वाई, और लॉग वाई का करेंगे तो 1 अपॉन वाई, और वाई का करेंगे तो डी वाई, और डी जेड का करेंगे तो डी जेड इज इक्वल जेड का डी जेड और लॉग जेड का 1 अपॉन जेड, और जेड का क्या हो जाएगा डी जेड। अब अपने पास तीनों वैल्यू दिख रही हैं, डी एक्स कैपिटल में डी एक्स दिख रहा है, कैपिटल में डी वाई दिख रहा है, और कैपिटल में ही डी जेड दिख रहा है। अगर डी जेड वाले पार्ट को मैं कैपिटल डी एक्स से डिवाइड करूँ तो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा चौकी लगा के कि डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल कितना आएगा, कि आपको 1 अपॉन जेड डी जेड दिख रहा है, और डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये जो एक्स है ये ऊपर चला जाएगा, तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स अपॉन जेड डी जेड बाई डी एक्स। और ये जो पार्ट होता है आपको मैंने बताया था कि जो डिफ्रेंशिएशन का पार्ट होता है वो ऑर्डिनरी में हो या पार्शियल में हो वो सेम रहता है। तो हमने जो सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यू निकाली है वो डी जेड बाई डी एक्स लिखें या फिर डेल जेड बाई डेल एक्स लिखें, ये दोनों सेम है। तो डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी एक्स अपॉन जेड डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये अगर ऑर्डिनरी में है तो इसको पार्शियल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन जेड डेल जेड बाई डेल एक्स। तो यहाँ पर आपको देखो ये दिख रहा है स्टार्टिंग में देखो गिवन इक्वेशन लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे और के इक्वल के आगे इक्वेशन जो लिखी हुई है ये वाली पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला पार्ट इस इक्वेशन में है, देखो आप यहाँ पर एक्स अपॉन जेड डेल जेड बाई डेल एक्स, तो इसको हम क्या लिख देंगे कैपिटल में डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस आगे वाले पार्ट को डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब कैपिटल में जो डेल जेड बाई डेल एक्स आ रहा है उसको कैपिटल पी मान लो। यहाँ देखो लेट पी इज इक्वल हमने कितना माना डेल जेड बाई डेल एक्स, और क्यू इज इक्वल मान लिया डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो अपने पास जो न्यू इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल 1। अब आपको इसमें कहीं पर भी एक्स वाई जेड की टर्म नहीं दिख रही है, ओनली क्या दिख रहा है आपको कैपिटल P और कैपिटल Q दिख रहा है। देयर फॉर इस कंप्लीट इंटीग्रल अगर अपन अज्यूम करें तो वो भी क्या होगा पूरा कैपिटल में होगा। तो z इजिकल कितना आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आ जाएगा, वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल 1। ये कहाँ से आया, देखो हमने क्या किया कि जो कैपिटल P है उसका हम क्या मानेंगे ए के इक्वल मानेंगे, कैपिटल Q को किसके इक्वल मानेंगे बी के इक्वल मानेंगे। तो हमने जो यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल 1 दिख रहा है, यहाँ पी की जगह ए कर दो और क्यू की जगह बी कर दो, तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल कितना आ गया 1 आ गया। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम दिस पार्ट। तो बी इजिकल हमारे पास कितना आएगा रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हम यहाँ जेड की जगह पुट कर दें तो जेड इजिकल अपने को कितना दिखेगा ए एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना है वो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ए इक्वल कितना ले रहे हैं
कोस एल्फा। अगर हम ए की वैल्यू कोस एल्फा लेते हैं तो जेड इज इक्वल देखो कितना आएगा, कोस एल्फा एक्स प्लस यहाँ पर बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का रूट करेंगे तो कितना बचेगा, साइन एल्फा वाई प्लस सी। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आंसर अभी किस में आ रहा है, कैपिटल जेड में आ रहा है, जबकि अपने पास जो क्वेश्चन है अपना वो स्मॉल पी में था, स्मॉल क्यू में था। तो स्मॉल वैल्यूज़ में निकालने के लिए क्या करेंगे, इन कैपिटल में जो एक्स वाई जेड दिख रहे हैं इनकी वैल्यू भी हमें स्मॉल में पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके इनको। जेड की वैल्यू हमने क्या ज्यूम की थी, देखो यहाँ पर देखो ऊपर ऊपर ये वाला पार्ट यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है आपको। कैपिटल जेड को लॉग जेड लिखा था, वाई को लॉग वाई लिखा था और एक्स को लॉग एक्स लिखा था। तो यही चीज़ अपने को क्या करनी है, यहाँ पुट की हमने, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। लॉग जेड देखो यहाँ पर जेड की जगह लॉग जेड रख दिया, कोस एल्फा अपनी जगह है, एक्स को लॉग एक्स लिख दिया प्लस साइन एल्फा लिख दिया, वाई को लॉग वाई लिख दिया प्लस सी को भी हमने क्या लिख दिया, लॉग सी लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ कैपिटल सी लेके इसको स्मॉल में लॉग सी लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन देखो, लॉग जेड इज इक्वल, यहाँ पर हम आपको पता होगा कि जो लॉग के पहले वाला पार्ट होता है वो हमेशा एक्स की पावर में चला जाएगा। तो लॉग ऑफ एक्स की पावर क्या हो जाएगी, कोस एल्फा। सिमिलरली हमने क्या किया, प्लस साइन एल्फा लॉग वाई था तो साइन एल्फा वाई की पावर में चला जाएगा, तो लॉग वाई की पावर साइन एल्फा प्लस लॉग सी। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पार्ट राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी क्या होता है, लॉग ए बी सी होता है। तो हमने एक साथ में लिख दिया लॉग जेड इज इक्वल लॉग ए बी सी। अब दोनों तरफ लॉग है तो वो कैंसिल आउट होकर जेड इज इक्वल कितना आ जाएगा, एक्स की पावर कोस एल्फा वाई की पावर साइन एल्फा डॉट सी आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो कि ये वापस आंसर लाना है तो इसमें वापस हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और रिजल्टेंट जो है वो आपकी गिवन इक्वेशन आ जाएगी इसमें। ठीक है, अब आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको खुद को सोल्व करना है एज ए असाइनमेंट, कि सोल्व रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल 1। सेकेंड है आपका पी क्यू प्लस क्यू इक्वल 0। ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, पहले ये नोट्स नोट करने हैं पूरी कॉपी में, उसके बाद में ये दोनों असाइनमेंट के क्वेश्चन भी मेरे को सोल्व करके आपको सबमिट करने हैं। और ये सबमिशन आपका आज टिल 12 PM तक हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।